Good afternoon and welcome everyone to this live session on current affairs for 27th of August 2020. In this class, I'll be taking you through the jurisprudence around the topic of reservation. आज तक इंडिया में reservation को लेके जितनी भी judgments आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, इस एक घंटे में हम उन reservations के अराउंड judgments को समझेंगे, reservation policy को समझेंगे 1 से 1.5 घंटे में. And in the last part of this class, I'll be taking you through the important news articles of the day. So this topic of reservation has appeared in the newspaper today in the light of Maratha judgment. 12 to 13% judgment to the Marathas in Maharashtra is being challenged, right? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि पूरा जो रिजर्वेशन पे 50% कैप है, जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 1962 की, उसमें ये कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया राइट टू इक्वालिटी के अंडर कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा. 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट में पहली बार ये चीज़ निकल के आई ससिंक्ट मैनर में दैट येस रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50% बिकॉज राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 का एक सबसेट है आर्टिकल 15 और बाकी के जो आर्टिकल 16 जो बात करते हैं, राइट. आर्टिकल 14 is the main article which seeks to establish equality. In the process of establishing the equality for some sections of society, that is SCs and STs, you cannot ignore the equality of non-SCs and STs. ये मतलब था नॉन एससी और एसटी जनरल इक्वालिटी को प्रिवेल करवाने के लिए तो 16 के अंडर रिजर्वेशन दी जा रही है, 16 क्लॉज 4 के अंडर, राइट. क्योंकि ये लोग बैकवर्ड हैं, ये माना जाता है, एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज. अब इनकी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए हम इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट कर सकते, ये इसका बेसिक मतलब है. समझ में आया? इसीलिए ये 50% कैप लाया गया आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 मेन आर्टिकल है. जैसा कि हम अपनी पॉलिटी की क्लास में भी देखते हैं, आर्टिकल 14 इज द मेन आर्टिकल एंड आर्टिकल 15 एंड 16 दे सीक टू एस्टैब्लिश equality required under article 14 by granting reservation, by protecting the people from discrimination in various forms. But that does not mean that in the process of establishing equality for one section of society, the equality of another section of society can be run roughshod over. You cannot run over the equality of others. You cannot trample upon the equality of others in the process of creation of equality for these. Clear to everyone? इस बेसिस पे 50% कैप रखा गया. तो शुरू करते हैं. सुप्रीम कोर्ट was urged today, that is yesterday 26th of August 2020, to set up a larger bench of 11 judges to reconsider its 50% cap on reservation. ये पुश कहाँ से आया? While the court was hearing a challenge to Maratha reservation law, a bunch of petitions contended that the law, which provides 12% to 13% reservation for community in Maharashtra, breached the 50% cap on reservation declared by a 9-judge bench of the court in 1992. 9-judge bench of the court जो है उसने 1992 में, यानी कि प्लीज नोट डाउन, इंदिरा साहनी केस, you must be knowing this, 1992 Indira Sahani case in which reservation for OBCs was the main challenge. Indira Sahani judgment done 1992. Lawyers who appeared for Maharashtra government before a bench asked the court to refer the case to a numerically superior bench of 11 judges. This bench should, rather than restricting itself to Maratha law, rather than restricting itself to this Maratha case, set about considering the 50% ceiling itself. They say that the conditions have changed. Conditions काफ़ी drastically change हो गई हैं, तो इस पूरे law को ही इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या आज ये 50% का अपर लिमिट की रिजर्वेशन 50% से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसको रिव्यू किया जाए. क्लियर?
they reasoned that 28 states had granted reservation exceeding 50% to their respective backward classes. One of the lawyers suggested that court should hear all these states. 85% in Maharashtra belong to backward classes. So is the case in many states. तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, 50% से ज़्यादा है. तो सुप्रीम कोर्ट हैड इन इंदिरा साहनी केस said that this reservation could exceed 50% only on the basis of citation of data. You have to provide quantifiable data, and on that basis you can provide reservation even beyond 50%. So some of the states which had provided this 50% reservation, they have provided quantifiable data. The lawyers submitted that court should revisit the percentage of reservation taking into consideration the recent developments in the front, on the reservation front, including 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लॉयर्स ने ये कहा कि यही नहीं कि टाइम टू टाइम राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिजर्वेशन इंक्रीज कर रही हैं 50% से ज़्यादा, खासकर ओबीसीज के लिए, बल्कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद कोटा जो है 50% की बजाय 60% हो गया है, 10% और ऐड हो गया है. तो इसके चलते पूरा का पूरा थरो रिव्यू किया जाए कि क्या आज की सिचुएशन में 50% रिजर्वेशन वैलिड है या नहीं. क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब हम वन बाय वन इन केसेस को देखेंगे. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. Those of you who are there in my polity batch, I had promised you that I'll be coming up with this document. So here we are. So you have to read it today along with the text provided for, along with the PPT provided for Article 16. 124th Constitutional Amendment Act providing 10% reservation, 10% quota for economically weaker section from the general category of population, primarily the upper caste Hindus, but also the religious minorities, यानी कि Muslims. ठीक है, तो ये सभी के लिए अवेलेबल रहेगा. Just 1 minute. But also the had already been challenged in the Supreme Court. It was challenged. As legal experts had pointed out, the government's decision would appear to face two insurmountable obstacles laid down by the Supreme Court itself in its landmark 1993 judgment. 1992-1993 judgment कहा जाता है इसे, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. These two handicaps or obstacles that 103rd Constitutional Amendment Act or 124th bill had to face were the total number of reserved seats could not exceed 50%. But Supreme Court ने इसे uphold कर लिया है. अब Supreme Court upheld the validity of 103rd Constitutional Amendment Act. तो this is there. Just a second. तो दूसरा provision क्या था? ये था, right? Just 1 minute. So this is there. Now coming back here, just 1 minute. Now that under the constitutional scheme of reservation, economic backwardness alone could not be a criterion. सिर्फ economic backwardness एक criteria नहीं हो सकता. ये 1992 इंदिरा साहनी केस में जब नरसिम्हा राव ने क्या किया था कि 10% रिजर्वेशन दे दिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सोशली एंड इकोनॉमिकली, राइट.
सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो ये चीज़ चल रही थी। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पहली बार किया गया। इट स्पेसिफिकली अमेंडेड 103rd Constitutional Amendment Act specifically amended Article 15 which prohibits discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, and it also amends Article 16 to insert new clauses that allow the government to make special provisions for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than SCs, STs and OBCs. तो ये सारी चीजें करी गई हैं। एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजंस अदर देन SCs, STs एंड OBCs. Then it needs no emphasis to say that the principal aim of Article 14 and 16 is equality and equality of opportunity, and the clause 4 of Article 16 which provides the reservation is just a means of achieving the very same objective. Clause 4 is a special provision, though not an exception to Clause 1. Clause 1 equality की बात करता है. There shall be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth in the matters of public employment. But Clause 4 ये कहता है nothing in this Article 16 shall prevent the state from making reservation for the backward sections of society if they are not adequately represented in the opinion of the state. ठीक है, अब clause 4 एक exception है, ठीक है, to clause 1. Both these provisions have to be harmonized, keeping in mind that both are but the restatements of principle of equality. एक clause 4 के चलते दूसरे की equality, दूसरे की caste के चलते उसको अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। जनरल कास्ट को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। रादर क्लॉज 1 ये नहीं है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 4 को एक साथ पढ़ना है। क्लॉज 4 जो है कि SC, ST या OBCs के लिए जो रिजर्वेशन है वो क्लॉज 1 को सप्लीमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि क्लॉज 4 को इंप्लीमेंट करने के चलते क्लॉज 1 माइनस करना है, क्लॉज 1 में से क्लॉज 4 नेगेट कर रहा है, नहीं, वो रादर उसको ऐड कर रहा है। इक्वालिटी की जो क्वोशंट है उसमें ऐड करने के लिए जिन लोगों के खिलाफ पहले से जिनको परसिक्यूट किया गया, सब्जुगेट किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको उठाने के लिए ये किया जा रहा है। गॉट इट? अब समझ में आया? तो ये मतलब है। Yes, economic backwardness alone is not allowed. Social and economic backwardness is what our constitution recognizes. Social and economic backwardness. Clear? They both have to go together. It is not written or here. So that is the meaning. ये हमने पॉलिटी में भी उस दिन समझा है। So आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है आज, don't worry. And in September 2018, the SC had taken the view in the Jarnail Singh case that socially, educationally and economically advanced cream of SC, ST communities should be excluded from the benefits of reservation. सितंबर 2008 में जर्नैल सिंह नाम का एक केस आया। देखो, अब मैंने ये बता दिया कि क्या चल रहा है पूरा रिजर्वेशन में, हम आज ये समझ रहे हैं। मैंने आपको 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया। अब हम दोबारा से चल रहे हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउड है या नहीं है, फिर उसके बाद क्या 50% कैप को ब्रीच किया जा सकता है या नहीं। सो एवरीथिंग दैट हैज़ बीन इन द न्यूज़ अराउंड रिजर्वेशन सिंस द ईयर 1992 एक जजमेंट है, फिर उसके बाद नागाराज जजमेंट है 2006 की, फिर उसके बाद 2018 की एक जजमेंट है, फिर 2020 की एक जजमेंट है। इन सारी जजमेंट्स को आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज देयर नाउ। द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिशियसली हियर, अब यहाँ पे सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जर्नैल सिंह केस में कि सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड cream of SC ST communities should be excluded from the benefits of reservation, यानी कि application of creamy layer on SC ST communities, ठीक है, in the promotion, जो SC ST members of IAS IPS हैं उनको exclude कर दिया जाएगा।
विद दिस द सुप्रीम कोर्ट डीलिंक्ड द नीड फॉर क्वांटिफाइबल डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई राज्य सरकार या सरकार ये डिसाइड करती है कि रिजर्वेशन नहीं देना, तो उस केस में डेटा गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आप किसी भी तबके को, किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हो तो क्वांटिफाइबल डेटा लेके आओ। एंड ये भी कहा गया था कि रिजर्वेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। राइट, यस यू आर राइट अनिकेत। तो क्वांटिफाइबल डेटा तभी लाना है जब आप रिजर्वेशन दे रहे हो। अब अगर किसी स्टेट ने रिजर्वेशन देने से मना कर दिया तो उस स्टेट को डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि देखो आप एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो, हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अगर किसी सेक्शन को, कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना स्टेट ने मना कर दिया तो स्टेट के लिए डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कम्युनिटी डिमांड करे, प्रोटेस्ट करे कि हमें रिजर्वेशन दो, हम नहीं तो हमें डेटा दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में ये मतलब था कि अगर रिजर्वेशन इज़ अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, रिजर्वेशन इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द स्टेट। अब अगर किसी स्टेट ने रिजर्वेशन नहीं देना तो बात खत्म, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट expeditiously heard the Jarnail Singh case, Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta case, on the question of whether the concept of creamy layer should apply to SCs, STs job promotions following a request from the union government। अब इसमें क्या हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट जरनैल सिंह केस आया कहाँ से? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने, उत्तराखंड में जो सड़क बनाने का या घर बनाने का जो डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग, सितंबर 5, 2012 के डिसीजन में ये कहा उन्होंने कि उन्होंने एक डिसीजन लिया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि पब्लिक पोस्ट्स को, पब्लिक सर्विसेज में जो स्टेट पोस्ट्स हैं उनको फिलअप किया जाएगा without providing reservation to SCs and STs in the promotions was challenged in Uttarakhand High Court. Now government's decision was challenged in the Uttarakhand High Court. Uttarakhand High Court ने इसे strike down कर दिया। उत्तराखंड ने, हाई कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन दिए बिना स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब को अगर आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो तो आपका ये डिसीजन गलत है। अब ये अपील हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई, जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी सिंह गुप्ता केस, लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। ये जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इट इज़ अ सेटल्ड लॉ दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट पोस्ट्स। Similarly, the state is not bound to make reservation for scheduled castes and scheduled tribes in the matters of promotion. सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SCs एंड STs कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर स्टेट चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे। लेकिन अगर स्टेट को देना है तो क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस करना होगा। If the state wants to confer reservation, then quantifiable data needs to be produced. Done? नहीं तो there is no need to produce the quantifiable data. Done? Just a minute. There is no need to produce the quantifiable data. So this is there. Now, Uttarakhand government September 5, 2012 decision to fill up, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में पढ़ोगे, however if the state wish to exercise their discretion, if the state wish to exercise their discretion and make such a provision, then the state has to collect quantifiable data showing inadequacy of representation of that class in public service, the bench said। ठीक है, while upholding the Uttarakhand government September 2012 notification, the Supreme Court said that as the government is not bound to provide reservation in promotions, the High Court should not have declared the state's decision as illegal। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने
रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने से मना कर दिया एससीज और एसटीज को, उस डिसीजन को खारिज कर दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन देना कोई बाइंडिंग मैटर नहीं है स्टेट के ऊपर, इट इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अगर स्टेट चाहे तो दे, नहीं चाहे तो मत दे। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट की सितंबर 2012 नोटिफिकेशन को रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, द हाई कोर्ट शुड नॉट हैव डिक्लेयर्ड इट वैलिड। क्वांटिफाइबल डेटा ये होता है प्रूव करना कि 100 में से अगर उस स्टेट में पॉपुलेशन आउट ऑफ 100 12% पॉपुलेशन एससी है, तो उस 12% एससी पॉपुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, 12% पब्लिक सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। अब अगर पब्लिक सर्विसेज में 12% रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि फिर आप उसके लिए रिजर्वेशन दो, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दो, दिस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। क्लियर? सो दिस वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज देयर। अब अगर रिजर्वेशन नहीं देता सुप्रीम, ये अगर सरकार चाहती है कि रिजर्वेशन नहीं देना, तो जो लोग इस रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं वो लोग ये विद्रोह करते हैं सरकार का कि क्वांटिफाइबल डेटा दिखाओ कि यदि 100 ऑफिसर्स हैं या 100 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्या उसमें से 12% जो कि स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से 12% अगर एससीज हैं, तो क्या 12% गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी एससीज हैं या नहीं। तो ये देने के लिए स्टेट के ऊपर डेटा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ या गवर्नमेंट हूँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देना, क्या उस अवस्था में मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर मैं रिजर्वेशन दे रहा हूँ तो क्या मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा? यस। बावजूद इसके कि अगर वो कम्युनिटी ये कहे कि आपने हमें रिजर्वेशन देने से मना कर दिया, डेटा दिखाओ किस बेसिस पे आपने मना किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई डेटा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने मना कर दिया, रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे, तो आप नहीं दे रहे। अब ये नहीं है कि अगर वो कम्युनिटी जो है सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो आप रिजर्वेशन दोगे ही दोगे, नहीं। चाहे कोई चक्का जाम करे या फिर कोई रोड ब्लॉक करे, ये रिजर्वेशन एक बर्थ राइट नहीं है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ स्टेट के बेसिस पे दी जाती है। क्लियर? Referring to the constitutional provisions about reservation, the Supreme Court said that it is for the state government to decide whether reservations are required in the matter of appointment and promotions to the public. Supreme Court ने ये भी कहा कि Article 16 Clause 4 and 4A empower the state to make reservation in the matters of appointment and promotion in favor of scheduled caste and scheduled tribe if in the opinion of the state they are not adequately represented, even if they are genuinely not adequately represented। quantifiable data का मतलब यही है कि 100 गवर्नमेंट अधिकारी हैं और 100 स्टेट की पॉपुलेशन है मान लो, और 100 में से 12 एससीज हैं, अगर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो क्या 100 गवर्नमेंट ऑफिसर्स में से 12 हैं? अगर इसमें से 8 हैं तो केस बनता है रिजर्वेशन का। लेकिन फिर भी केस रिजर्वेशन देना है या नहीं, ये स्टेट तय करेगा, ये सरकार डिसाइड करेगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाहे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। अगर ये लोग रिजर्वेशन मांगें या डिमांड करें या चक्का जाम करें या स्ट्राइक करें, ये गलत है। स्टेट को मजबूर नहीं किया जा सकता। समझ में आया? पॉपुलेशन डेटा इज फ्रॉम सेंसस। गवर्नमेंट अधिकारियों की तो फिर गिनती गवर्नमेंट ही करवाएगी कि कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हैं और कितने होने चाहिए, ये भी स्टेट ही तय करेगा। अगर स्टेट को लगता है कि नहीं, उन्हें एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, रिजर्वेशन नहीं देना प्रमोशन में, तो स्टेट की मर्जी। Supreme Court said that the language in clauses 4 and 4A of Article 16 is clear, according to which the inadequacy of representation is a matter within the subjective satisfaction of the state. All that is required is that there must be some material on the basis of which some opinion is formed. इसका ये मतलब है, अगर opinion नहीं form हुई तो कोई बात नहीं. If the opinion is not formed, then it is fine.
अच्छे से लिखो सालसाबिल, आपकी स्टेटमेंट ही गलत है शायद, नॉट लिखना भूल गए हो स्टेटमेंट में शायद, या क्या लिखना चाह रहे हो, समझ में आया? Supreme Court judgment on 7th February 2020 relied on these precedents to rule that since the reservation is not a fundamental right, the government is not bound to collect quantifiable data showing that a community is inadequately represented if it has already decided not to grant reservation. If a community is inadequately represented in the government services, then data has to be collected and then only the reservation could be given. But if the government has already decided not to grant reservation, then since it is not a fundamental right to seek reservation, तो ये सही है, समझ में आया? ठीक है। अब ये तो अगर भाई रिजर्वेशन नहीं देना, मुख्यमंत्री ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, तो बात खत्म हो गई। आप रिजर्वेशन मांगने वाले, रिजर्वेशन डिमांड करने वाले ये नहीं कह सकते कि डेटा लेके आओ कि हमारा क्लेम बनता है। देयर इज नो क्लेम टू पब्लिक ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। इफ यू हैव अ क्लेम, prove it through efficiency. If the state thinks that yes, you are backward, then state cannot on whimsical grounds say that you are backward. State has to collect the data to prove your backwardness so that the advancement of others under article equality who are backward, ठीक है, advancement of others who are relatively progressive cannot be retarded, cannot be slowed down just because the state thinks on whimsical grounds, fanciful grounds, मन घड़ंत कारणों के चलते ये नहीं कहा जा सकता कि ये आदमी बैकवर्ड है, इसको रिजर्वेशन दे दो। नहीं, प्रूव करना होगा कि उसकी कम्युनिटी वाकई ही पब्लिक सर्विसेज में 12% नहीं है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 12% है उस कम्युनिटी की, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कम्युनिटी की पॉपुलेशन 12% है और सर्विसेज में 6% रिप्रेजेंटेशन है, कोई बात नहीं। स्टेट ने अगर डिसाइड कर लिया रिजर्वेशन नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। Here the petitioners wanted the government to collect the data to prove that they are adequately represented so as to deny the reservation so as to deny the reservation to them. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है दैट दे वुड बी डिनाइड द राइट टू रिजर्वेशन, तो कोई डेटा देने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट्स क्या कहते हैं, पास्ट के केसेस क्या कहते हैं? देयर आर सेवरल मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स that have in the past ruled that Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4 do not provide a fundamental right to reservation per se. Right to reservation नहीं है, clear? So a 5-judge Supreme Court bench as early as 1962 in M.R. Balaji versus State of Mysore, this is the first case, ठीक है, had ruled that Article 15 Clause 4 is just an enabling provision. It is not a mandatory provision. Enabling provision meaning that it does not impose an obligation but merely leaves it to the discretion of the appropriate government to take suitable action if necessary. Arshika, it is reservation, okay? Enabling provision meaning that it does not impose an obligation but it merely leaves it to the discretion of the appropriate government, state government or the central government, state government or the central government, right? So this is there, right, to take suitable action if necessary. The court was hearing a challenge to an order passed by the erstwhile state of Mysore. तो state 1962 में M.R. बालाजी केस में इस केस में चैलेंज देख रहा था कि स्टेट ऑफ मैसूर ने रिजर्व की 68% सीट्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड एससीज एंड एसटीज। 5 years later 1967 में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सीए राजेंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, government is under no constitutional duty to provide reservation for SCs and STs either at the initial stage of recruitment or at the stage of promotion. ये तो एक enabling provision है।
ये दोनों केसेस में, ठीक है, MR बालाजी वर्सेस CA राजेंद्रन, क्लियर है। उसके बाद 16 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट सेड डज नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑन द सिटीजन्स एंड इज जस्ट एन एनेबलिंग प्रोविजन गिविंग डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नमेंट। डिस्क्रिशनरी पावर, किसी का कोई, देखो पब्लिक ऑफिस का ये मतलब नहीं है कि पहले राजा महाराजाओं का होता था पब्लिक ऑफिस, कि हाँ ये राजा का बच्चा है तो ये किंग बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन में पैदा हुए हैं तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। नो, स्टेट जब चाहे रिजर्वेशन रिमूव कर सकती है, क्लियर। So how interesting an interpretation it is. The position went on to be reiterated, repeated in several other decisions, including the 9-judge bench landmark ruling in Indira Sahane versus Union of India and the 5-judge bench decision in M. Nagaraj versus Union of India. Clear? What does the government want? Government wants the Supreme Court to reconsider its stand that socially, educationally and economically advanced cream of scheduled caste, scheduled tribe communities should be excluded from the benefits of reservation in government services. cream को exclude करने की बात करी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैड आस्क्ड द CJI, ये जो सितंबर 26, 2018 का अभी जो केस चल रहा था उस पे गवर्नमेंट वांटेड द सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स स्टैंड कि जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एडवांस क्रीम है स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब की, शुड बी एक्सक्लूडेड। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था दे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस। Government had asked CJI to refer 26 September 18 judgment of 5-judge bench of the Supreme Court in जरनैल सिंह। उत्तराखंड वाले केस पे वापस आ रहे हैं हम। उत्तराखंड वाले केस में जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस को लार्जर बेंच को रेफर करने की बात की जा रही थी फॉर अ रिव्यू। द कोर्ट इन द जरनैल सिंह केस had upheld the applicability of the creamy layer to affluent sections, ठीक है। जरनैल सिंह केस में कोर्ट ने ये कहा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाए। गवर्नमेंट वांटेड इट सुप्रीम कोर्ट to reconsider its stand that these advanced sections of scheduled caste and scheduled tribes communities should be excluded, ठीक है। In Jarnail Singh, the court had agreed with its 12-year-old verdict in 2006 M. Nagaraj case that creamy layer applied to SCs and STs in order to prevent socially and advanced backward sections of the community or classes from eating the whole cake. सुप्रीम कोर्ट ने M. नागाराज केस को रिआइटरेट किया, दोबारा से दोहराया कि हाँ SC ST में जो क्रीमी तबका है, जो पहले से ग्रुप A या ग्रुप B ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा, भले ही वो एडिक्वेटली अपर लेवल्स ऑफ अपर एक्िलन्स ऑफ गवर्नमेंट में सीनियर लेवल्स पे, सेक्रेटरी लेवल पे रिप्रेजेंटेड हैं या नहीं, ठीक है। बट द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट क्रीमी लेयर विल बिकम अ रूस टू डिप्राइव द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। गवर्नमेंट ये सोचती है कि एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा, एक मोहरा बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा क्रीमी लेयर अपर ये लोअर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन का, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट दिलाने में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल सेड SC ST community as a whole still continues to be the yoke of centuries old backwardness। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि SC ST लोगों को ऑफिसर्स बनाया जाए, सीनियर लेवल पे इनकी प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो SC ST कम्युनिटी का भी ये कहना है कि ये लोग रिजर्वेशन के जरिए सिलेक्शन तो हो जाता है बट सिलेक्शन के आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट। इन्होंने कुछ ऐसा डेटा प्रूव किया कि जो इन्हीं की कम्युनिटी के, इन्हीं की कास्ट के जो लोग हैं OBC SC ST, यदि वो मंत्री हैं तो वो भी ये बिलीव करते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, इसलिए SC ST मिनिस्टर्स भी SC ST एडवाइज़र नहीं चाहते, इसीलिए सिस्टम इनको एक सीलिंग है, ग्लास सीलिंग, इससे ऊपर नहीं उठने देता। इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना चाहिए, चाहे ये इनकम के हिसाब से अमीर हैं तो भी, चाहे ये रिजर्वेशन इन सिलेक्शन में बेनिफिट ले चुके हैं तो भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ नहीं कर रहा है।
इनकम सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का केक है ये अमीर तबके के SC STs कंज्यूम ना कर जाएं। समझ में आया? क्लियर? Please answer. Is it clear to everyone? Be regular with the classes. और ऐसा है भी कि जो SC ST कैटेगरी के जो मिनिस्टर्स हैं वो इनको ऊपर ही नहीं आने देते। ठीक है, सिलेक्शन तो हो जाता है SC ST कम्युनिटी से, तो आप देखोगे बहुत ही कम SC ST कम्युनिटी के जो ऑफिसर्स हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? Means test and creamy layer first finds the expression in the Supreme Court's landmark judgment in Indira Sahane versus Union of India, delivered by 9-judge bench. The judgment recorded lawyers describing the creamy layer as some members of backward classes who are highly advanced, यानी कि दूध के ग्लास पे तैरती हुई क्रीम मलाई, राइट? अब ये लोग एडवांस्ड हैं, नीचे के लोग जो हैं बैकवर्ड है। तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है हु आर हाईली एडवांस्ड socially as well as educationally and economically. They constitute the forward sections of that particular backward class, as forward as any other so called forward class member. तो अपर कास्ट हिंदूज की बराबरी रखने वाले लोग, कहने को वो SC ST हैं क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, बट अदरवाइज वो फॉरवर्ड सेक्शंस हैं। इट इज देम who lap up all the benefits of reservation. ये वो लोग हैं सारा बेनिफिट ये खुद ही बटोर लेते हैं। ठीक है, meant for that class without allowing the benefits to percolate downwards. ये बेनिफिट जो रिजर्वेशन के ये नीचे नहीं पहुंच पाते। इंदिरा साहनी जजमेंट had upheld the government's move based on the Mandal Commission to give 27% reservation to OBCs, but बाकी में नहीं। क्लियर? बाकी केसेस में नहीं। But Supreme Court held that creamy layer socially advanced persons can be and must be excluded from backward classes. Clear? Creamy layer can be and must be excluded from the backward classes. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उस टाइम पे कह दिया। कोर्ट ने ये कहा इकोनॉमिक क्राइटेरियन could be adopted as an indicum, as an indicator or measure of social advancement. तो अब यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक क्राइटेरिया यानी कि इनकम क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ अ क्रीमी लेयर इन अ क्लास और अ ग्रुप। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा टू फिक्स द नॉर्म्स फॉर इनकम। 1993 में क्रीमी लेयर के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा आय है जिस फैमिली की इनकम है वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं थी OBCs में। इट वॉज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 2.5 लाख, फिर 4.5, फिर 6 लाख, फिर फाइनली 8 लाख रुपीज। अगर किसी OBC फैमिली की टोटल इनकम, सभी फैमिली मेंबर्स की इनकम 8 लाख रुपीज से ज्यादा है, यानी डोंट गेट इनटू द कास्ट एंड ये सब कम्युनिटी में। जस्ट एक टॉपिक है, हमें उसे कवर करना है बस। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग ऐसे सोचने लगोगे तो फिर इन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है ना, जस्टिफाई करने लगोगे। इट्स अ मिथ, आई अग्री और आई डोंट अग्री, हार्डली मैटर्स। नाउ हाउ वॉज द क्रीमी लेयर मेड एप्लीकेबल टू SC ST मेंबर्स? अब ये तो समझ में आ गया, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट OBCs के लिए रखा गया। क्लियर? जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते हमारी विचार मैटर नहीं करते। इंदिरा साहनी वर्डिक्ट हैड हेल्ड देयर वुड बी रिजर्वेशन ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड नॉट प्रमोशंस। इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था, ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सेंटर ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A इंट्रोड्यूस किया 1995 में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नेगेट करने के लिए। ठीक है,
77th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंदिरा साहनी कोर्ट जजमेंट में जो कहा गया, देयर वुड बी रिजर्वेशन ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। 16 क्लॉज 4A के जरिए रिजर्वेशन इन प्रमोशंस देने के लिए ये चीज लाई गई। रीजनिंग दैट देयर रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट सर्विसेज हैज नॉट रीच्ड द रिक्वायर्ड लेवल। 16 clause 4B was also introduced to negate the impact of Indira Sahane judgment। इसमें यह कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल लाया जाएगा, यानी कि अगर एसटीज के लिए, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 12% सीट्स रिजर्व्ड हैं, 100 में से 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं और सिर्फ 6 ही फिलअप हो पाई, रिमेनिंग 6 जो है खाली रह गई, वैकेंट रह गई, तो उन 6 को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अगले साल उनको भरा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 2001 टू अलाउ रिलैक्सेशंस इन क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि कम मार्क्स के चलते भी, यानी कि SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए कट ऑफ कम होगी। अमेंडमेंट्स वर चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड दे वर रेफर्ड। तीनों की तीनों अमेंडमेंट्स, ये वाली अमेंडमेंट जिसके मतलब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्लॉज 4A 4B लाया गया, फिर 2001 में एक और अमेंडमेंट करा गया। दोनों अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में M नागराज जजमेंट में चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स यदि कम किए जाएंगे SC ST या OBCs के लिए, तो फिर क्या होगा, SC ST के लिए मार्क्स कम किए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में, गुड गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स कम हो जाएंगे, मेरिट कम हो जाएगी, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स यदि सिस्टम में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। M नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2006 में 5 जज बेंच in M Nagaraj laid down 3 conditions for promotion of SCs and STs in public employment। कोर्ट ने ये कहा, government cannot introduce quota in promotion for SCs and ST employees unless the government proves that a particular community was backward, inadequately represented, and providing reservation in promotion would not affect the overall efficiency of public administration as required under 335। Opinion of the government to provide reservation in promotion should be based on quantifiable data कि हाँ yes ये लोग backward हैं। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन विल नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी, ये दोनों चीजें सरकार यदि फुलफिल करती है तो M नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो जाके सरकार रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है। अब सरकार आज तक क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए। जजमेंट इन नागराज ऑल्सो हेल्ड दैट क्रीमी लेयर वॉज एप्लीकेबल टू SCs and STs in government job promotions। Yes, what is your name? आपने अपने नाम की जगह भी I am new here लिख दिया है। The last comment clear? What happened in the जर्नैल सिंह? अब आज हम 2018 वाले केस पे आ रहे हैं। सारी जजमेंट्स मैंने डील कर दी आज इस PDF में। In Jarnail Singh, another 5-judge bench led by the CJI Deepak Mishra upheld the 2006 verdict's reasoning that creamy layer principle was based on right to equality. The court held that quota benefits should go to the weakest of the weak and not be snatched away by the members of the same class who won the top creamy layer। ठीक है। तो जर्नैल सिंह केस में 5 जज बेंच ने, दीपक मिश्रा थे उस टाइम पे, ये कहा कि 2006 का जो M नागराज वर्डिक्ट की जो रीजनिंग है कि क्रीमी लेयर प्रिंसिपल विल बी बेस्ड ऑन दी will be applicable as it was based on Article 14 right to overall equality। कोर्ट ने ये कहा, quota benefits should go to the weakest of the weak and the upper layer, the creamy layer should not grab up all the benefits। जस्टिस रोहिंटन F नरीमन ने ये कहा सितंबर 26 2018 की जजमेंट में जर्नैल सिंह केस में, दैट क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एंश्योर्ड दैट only the genuinely deserving members of SC ST community get reservation benefits। 2018 की जजमेंट इसने इन पार्ट M नागराज जजमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, which requires the state to show quantifiable data
to prove backwardness, rejected the center's argument that Nagaraj had misread the creamy layer concept ushered by Indira Sahane, applying it to SC/ST. तो नागाराज जजमेंट में जो SC/ST कम्युनिटी पे अप्लाई किया गया था क्रीमी लेयर, उसको हटा दिया है ना जर्नैल सिंह जजमेंट में। समझ में आया? क्लियर है? अब इसको ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेंटर का जो आर्ग्यूमेंट है कि नागाराज जजमेंट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को, नागाराज जजमेंट ने मिसरीड किया है 1992 की जजमेंट को, राइट। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट अशर्ड इन बाय इंदिरा साहने बाय अप्लाइंग इट टू SC/ST। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, SC/ST पे क्रीमी लेयर एप्लीकेबल है। लास्ट पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। Praveen, no reservation in promotion right now? No, unless you prove it with the quantifiable data. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2018 की जजमेंट ने नागाराज जजमेंट को कुछ हद तक मॉडिफाई तो किया है, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ क्या मॉडिफाई किया है। ये कहा कि विच रिक्वायर्ड दी स्टेट्स, नागाराज जजमेंट में स्टेट्स को क्वांटिफाइबल डेटा प्रोवाइड करना था टू प्रूव दी बैकवर्डनेस। सेंटर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जर्नैल सिंह जजमेंट से सेंटर का ये क्लेम या आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया है कि नागाराज जजमेंट में 1992 की जजमेंट को मिसरीड किया गया, राइट, बाय अप्लाइंग इट टू SCs एंड STs इन प्रमोशंस। यहाँ पे हमने देखा ना कि SC/ST को प्रमोशन के टाइम पे भी सरकार को अगर SCs एंड STs की रिजर्वेशन देना है प्रमोट करते टाइम, तो क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जर्नैल सिंह में सरकार ये कह रही है कि ये गलती हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, 2006 में 1992 की जजमेंट को गलत रीड कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कहा कि कोई गलत रीड नहीं किया है। SCs एंड STs को भी यदि आपको रिजर्वेशन देनी है तो आपको क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस करना होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल, it is applicable provided you give the data. It is not applicable without data. If you can give the data, if you can provide the data, then you can provide the reservation in promotion, otherwise not. One of the judges in 2018 bench, Justice Nariman, had observed in his judgment for the court, the whole object of reservation is to see that backward classes of citizens move forward so that they may march hand in hand with the other citizens. This will not be possible if only the creamy layer within that class would bag all the coveted jobs in the public sector and perpetuate themselves. So 2018 judgment said that when the court applied the creamy layer to SC/STs in Nagaraj judgment, it did not tinker with the presidential list under Article 341 or 342, list of SCs and STs. Right, the caste group or subgroup named in the list had remained intact. The court had thus refused the government's plea to refer the case to a 7-judge bench. गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इसको 5-जज बेंच को, जजमेंट को 7-जज बेंच को सौंपा जाए। कोर्ट ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई नया लॉ तो फ्रेम किया नहीं, हमने तो सिर्फ जो 5-जज बेंच इंदिरा साहने बेंच में जो कहा गया था हमने उसको रिपीट किया है। और वही बात रिपीट की गई थी 2006 में नागाराज में, और नागाराज जजमेंट कोई गलत नहीं है, नागाराज जजमेंट एकदम ठीक है। यस अर्शिका, फाइन फॉर एवरीवन। नरेंद्र, देखो नरेंद्र, जो डेटा है वो ये है कि ओवरऑल ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने हैं, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल के। अब ये चेक किया जाएगा, काउंटिंग करी जाएगी कि अगर ओवरऑल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स मान लो कि 100 हैं, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी सब मिला के, उसमें से क्या 12% SCs STs हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर ओवरऑल IAS ऑफिसर्स
100 हैं, उस 100 में से 60 जो हैं जनरल कैटेगरी के सेक्रेटरीज हैं, बाकी 70 जो हैं जनरल कैटेगरी के सेक्रेटरीज हैं, 30 रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो यानी कि ये 50-50 होना चाहिए। तो बाकी 50 को प्रमोशन, ये जो 70-100 हैं, 100 में से 50% सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। समझ में आया? काउंटिंग किन की हो रही है? जो ऑलरेडी सिलेक्टेड IAS ऑफिसर्स हैं उसमें से कितने एज पर SC ऑर्डर is it there that reservation on creamy layer concept is only there in the promotion? As per Supreme Court order, लिख लो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, there is no creamy layer applicability, there is no application of creamy layer as per Supreme Court's extant मतलब existing orders, as per Supreme Court's extant judgment, existing judgment, as per Supreme Court's extant judgment, comma, concept of creamy layer for SCs and STs, concept of creamy layer for SCs and STs is applicable only at the time of promotion. Concept of creamy layer for SCs and STs is applicable only at the time of promotion. It is, next point, it is not applicable at the stage of entry, that is selection in the public services. It is not applicable at the stage of entry, that is selection or recruitment. ठीक है, अब क्लियर है ये सबको? अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फटाफट से 3-4 जजमेंट्स हैं, उनको अभी लिख लो यहीं पे, पैराफ्रेज करोगे आज नोट्स बनाते टाइम। डन, एंड दिस PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू। क्या डन? So let me show you the glimpse of the newspaper of the day. Quickly we'll do a walkthrough of the newspaper of the day. उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। Done. At opposition meeting, CM's plan to move SC on JEE NEET. Supreme Court hits out at center on the loan moratorium scheme. Again, it's a non-news. Supreme Court ये कह रहा है कि RBI को, कि आप सरकार को, कि आप RBI के पीछे क्यों छुप रहे हो, RBI की पीठ पीछे छुप के मोराटोरियम देने से क्यों बच रहे हो। जब EMI पे मोराटोरियम दिया था तब आपको इंटरेस्ट रेट पे भी मोराटोरियम देना चाहिए था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे जो उस टाइम जो EMI नहीं पे कर रहे लोग, उस टाइम पे इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? इंटरेस्ट आपको नहीं लगाना चाहिए, वन थिंग, राइट। और उसके अलावा कोविड टेस्टिंग टू बी डबल्ड इन दिल्ली सेज चीफ मिनिस्टर, नॉन न्यूज़। तो सोनिया 7 चीफ मिनिस्टर्स अटैक सेंटर ओवर की इश्यूज। ये है इंडिया रिस्क स्टैग्नेशन इफ GDP doesn't grow. अगेन फैक्चुअल पार्ट है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, Amazon faces antitrust case from online sellers. A group of more than 2,000 online sellers had filed an antitrust case against Amazon, alleging that US company favors some of the retailers whose online discounts drive independent vendors out of business. ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा दिखाया जाता है अमेजन पे और बाकियों के नहीं। तो प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, चाहे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं, दे शुड बी न्यूट्रल। तो अमेजन पे क्लाउड टेल एक एंटिटी है, उसको प्रमोट करता है अमेजोन, क्योंकि
क्लाउड टेल अमेजन की ही एक एंटिटी बनाई हुई है, ठीक है, नारायण मूर्ति के साथ में मिलके। इवन एज ई कॉमर्स रूल्स इन इंडिया allow only cash and carry model for e-commerce platforms in India। cash and carry का मॉडल मतलब वेयर हाउस मॉडल में ये अलाउड नहीं है। Amazon cannot own a warehouse and purchase the goods in bulk because Amazon has got very deep pockets। Amazon के पास बहुत पैसे हैं, एक ही बार में 10,000 मोबाइल फोन्स परचेज कर लिए जाएंगे और कंपनी को बोला जाएगा वन प्लस को कि दैट दीज मोबाइल फोन्स वुड बी सोल्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू Amazon। इसमें क्या होगा, बाकी के जो वेंडर्स हैं छोटी मोटी SK ट्रेडर्स या SK मोबाइल, वो सब तो डूब जाएंगे और फिर ये डिस्काउंट भी देगा क्योंकि 10,000 मोबाइल फोन्स अगर आप एकदम से परचेज करोगे वन प्लस के तो वन प्लस आपको 10 माइनस तो कर ही देगा, 10% डिस्काउंट दे देगा। अब ये डिस्काउंट पे बेचेगा और बाकी के एंटिटीज डूब गए, ठीक है। एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग ये होता है कि दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन Amazon। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक क्लॉज है CCI एक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2008। इसमें एक क्लॉज है एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स, ग्रुप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं एज अ क्लास सूट फाइल करना। अगर मैं एक सेलर हूं Amazon पे और बड़े बड़े पब्लिशर्स की मैगजीन्स या बुक्स दिखाई जाती हैं, मेरी नहीं दिखाई जाती, और मेरे जैसे ऐसे लाखों हैं और जो छोटी छोटी मैगजीन्स या बुक्स बेच रहे हैं, अगर उनको इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं देता Amazon तो Amazon के खिलाफ हम सब मिल के एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि Amazon इज डिस्टर्बिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड, इट इज एंटी ट्रस्ट, राइट। ट्रस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो गेटिंग वॉलेटेड एंड ट्रस्ट ऑफ द सेलर्स इज ऑल्सो गेटिंग वॉलेटेड, राइट। ग्रुप का ये कहना है दैट Amazon India's wholesale arm buys the goods in bulk from manufacturers and sells them at a loss to sellers such as Cloudtail। Such sellers then offer the goods on Amazon at a big discount। समझ में आया? तो ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन का ये कहना है। सो दिस इज देयर वेबिनार ऑन डेट फंड्स, ये वेबिनार होने जा रहा है, ये सब काम की न्यूज़ नहीं है। देन US blacklists 24 चाइनीज फर्म्स अमिड साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये हो गया। और इसके बाद स्टैग्नेशन, ये सारी न्यूज़ आर्टिकल्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार इस PPT को सिर्फ देख लिया करो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, आज ये जो जजमेंट हमने रिजर्वेशन वाली जिस जजमेंट की बात की है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में कि EMIs अगर आपने मॉरेटोरियम दिया था तो मॉरेटोरियम के साथ इंटरेस्ट भी देना चाहिए था, इंटरेस्ट को भी फ्रीज कर देना चाहिए था। बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटीज दैट इंटरमीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। गवर्नमेंट कह रही है कि RBI डिसाइड करेगा मॉरेटोरियम देना है कि नहीं। RBI कह रहा है कि बैंक्स जो हैं कमर्शियल एंटिटीज हैं, उनको ज़्यादा आर्म ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। अगर बैंक्स को ज़्यादा आर्म ट्विस्ट किया जाएगा तो NPAs की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये तीनों मिलकर लुका छुपी खोल रहे हैं। गवर्नमेंट RBI के पीछे छुप रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि RBI रेगुलेटर है, और सुप्रीम कोर्ट 56 इंच का सीना लेके आ जाता है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर बढ़ जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज जुडिशियलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट जो है इतने टाइम से इस पे डिसीजन नहीं कर रही, डिलेटेंटिज्म, अ काइंड ऑफ डायलेटरी टैक्टिक्स लग रहे हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको इतना टाइम दे दिया, फटाफट से इस पे डिसाइड करो, ठीक है। अब जब ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट करती है, पांव लड़खड़ाने लगते हैं सरकार के, तो क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस एक टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस गिव्स वे टू जुडिशरी टू एनहांस इट्स पावर। तो फिर लोग क्या करते हैं, जुडिशरी में और ज़्यादा केसेस लेके जाने लगते हैं कि मेरा इंटरेस्ट माफ़ नहीं किया, मेरे को फसल बीमा योजना के अंडर पैसे नहीं मिले। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से विश्वास उठने लगता है, डेमोक्रेसी बन जाती है जुडिशियोक्रेसी। इसीलिए सरकार को टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करना चाहिए। और ये बन जाता है, क्या बन जाता है ये, this creates the problem for judiciary also। जुडिशियल एक्टिविज्म की जगह ये कभी कभी
बहुत ही थिन लाइन है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में। ये केस बन जाता है जुडिशियल ओवर एडवेंचरिज्म का। आप एडवेंचर, आपको मजे आ रहे हैं सरकार को फटकार लगाने में, जजेस को, इस प्रोसेस में क्या होता है, जुडिशरी पे ओवर बर्डन हो जाता है। फिर लोग तरह तरह की कंप्लेंट्स लेके जुडिशरी में PIL फाइल करने लगते हैं और ये सब करने लगते हैं, जिससे बैकलॉग ऑफ केसेस बढ़ जाता है। और जैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रिजर्व कर रखा है, जजमेंट को जजमेंट नहीं दिया, ठीक है। वो रिजर्वेशन वाले मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, आधार जैसे मैटर्स थोड़े कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं और ऐसे मैटर्स में ही उलझी रहती है जुडिशरी, क्योंकि ये जुडिशरी को लोगों के करीब लेके आता है। और फिर हम देखते हैं कि जजेस फाइनली राज्यसभा में एंटर हो जाते हैं। फिर जजेस का क्रिटिसिज्म कम होगा, क्यों? लोग ये बोलेंगे हाँ हाँ ये वही जज हैं जिन्होंने मेरा लोन माफ करवाया था। समझ में आया? ये नहीं देखा कि वो जो आधार एक्ट में जो डैमेज करके गया वो जज, जो उसको काम करना चाहिए था वो चीज़। फिर जजेस आपको बाइक पे दिखाई देंगे, हाँ हाँ ये वही जज हैं जिनको मैंने हार्ले डेविडसन पे देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे, स्मार्ट थे। पॉइंट समझ रहे हो? इसमें क्या होगा कि डेमोक्रेसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पावर इज गेटिंग इरोडेड। समझ में आया? तो ये एक दिक्कत हो जाएगी, ये एक डैमेजिंग फिनोमिना है जो कि एक वरीसम है। फिर जजेस इलेक्शन लड़ने लगेंगे, फिर लॉक जैम ज़्यादा होने लगते हैं, लॉक जैम बिटवीन दी जुडिशरी। ये लॉक जैम ही है, ये डेड लॉक है फालतू का। सरकार को नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है, आप यहाँ पे लाइंस पढ़ोगे तो ये देखा हो जाएगा। The court noted that the issue had been pending indecisively for some months now and advised the government against adopting a blinkered vision, focusing only on the matters of business of banks and not looking at the plight of the people financially dented by the problems created. तो ये एक worrisome phenomena है, right? Government was empowered to take an independent stand under Disaster Management Act. ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। फिर उसके बाद एक क्विक रिव्यू फटाफट से कर रहे हैं। स्टैंड ऑफ बिटवीन मिजोरम गवर्नमेंट एंड असम राइफल्स। असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। असम राइफल्स के चीफ ने 15 अगस्त को हुए फंक्शन में मीटिंग को स्किप कर दिया और स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ऑफ सेंटर को ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही है। तो असम राइफल्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को नज़रअंदाज करना एक गलत चीज़ है। तो आरोप लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मिजोरम सरकार ये कह रही है कि फ्लैग्रेंट यूज़ ऑफ पावर्स करा जा रहा है असम राइफल्स के द्वारा। असम राइफल्स को वहाँ पे स्पेशल ड्यूटीज़ दी गई हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए, राइट। बावजूद इसके कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहाँ पे हटा दिया गया है मिजोरम में, उसके बावजूद भी असम राइफल्स बेलगाम पावर का इस्तेमाल कर रही है और मॉलेस्टेशन ऑफ विमेन और ये सारी न्यूज़ भी वहाँ से आ रही है। तो फैक्चुअली इसको कवर कर लिया अभी के लिए हमने। नाउ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इन सिंपल टर्म्स आफ्सपा गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्प्यूटेड एरियाज। तो इसके तहत आफ्सपा के अंडर स्पेशल पावर्स मिली हैं असम राइफल्स को, जबकि अब मिजोरम में आफ्सपा हटा दिया गया है। तो अब असम राइफल्स को अपनी औकात में आ जाना चाहिए, ये कहना है मिजोरम गवर्नमेंट का। SC urged to set up 11 judge bench on quota cap. This is what I have analyzed now today. तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। धीरे धीरे से सारे टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स आंध्र प्रदेश प्ली इन 3 कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल्स बनाने की बात की, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि एक कैपिटल होगी कुरनूल, दूसरी कैपिटल होगी अमरावती, तीसरी विशाखापट्टनम। और ये अच्छा वे है, दिस इज अ गुड वे टू डिसेंट्रलाइज पावर। व्हेन द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल कम क्लोजर टू द पीपल्स ग्रजेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड कम डाउन। इट विल लीड टू गुड गवर्नेंस। सो आंध्र प्रदेश के इस डिसीजन को, सरकार के इस डिसीजन को अभी के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है इस पे स्टे लगा दिया है, स्टेटस को लगा दिया कि आप नई कैपिटल नहीं बनाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और आप ये जो स्टे लगाया गया है उसको आप हटा दीजिए और हमें 3 कैपिटल्स बनाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट वुड बी प्रॉपर फॉर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट टू हियर दिस केस, डू नॉट कम टू अस। ठीक है, हमारे पास मत आइए।
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके मद्देनज़र अगर हम इसकी डिसीजन की एफिकेसी देखें तो ये एक अच्छा डिसीजन है। अगर हम नए डिस्ट्रिक्ट्स पहले ही बना देते आंध्र प्रदेश में तो शायद तेलंगाना को डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि फिर लोगों को ये लगता कि ये मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, तो नई डीएम या एसडीएम के ऑफिसेज या पोस्टिंग्स बनाने से ये एक फ़ायदा होता है कि लोगों के ग्रीवेंसेस सुनने वाला कोई हो जाता है, राइट। तो उससे लोगों के कंसर्न स्पेसिफाई हो जाते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया का मतलब आफ्सपा के अंदर ये होता है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्प्यूटेड मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया माना गया है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया अगर किसी एरिया को मान लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे किसी एरिया को डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पे आफ्सपा लगाया जा सकता है। डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेट भी हो सकता है आफ्सपा के अंडर, इट कुड बी अ लोकल एरिया, इट कुड बी अ जुरिस्डिक्शन ऑफ वन पुलिस स्टेशन एज वेल, और इट कुड बी जस्ट वन विलेज। Clear? So this is there. Now, recently Andhra Pradesh Assembly has passed Andhra Pradesh Decentralization and Equal Development of All Regions Bill 2020. This law paves the way for 3 pillars of the state. The 3 capitals, Amravati, legislative capital, Vishakhapatnam, executive capital, Kurnool, judicial capital. Need for 3 capital, the government says it is against building 1 mega capital while neglecting the other parts of the state. ठीक है, तो अब तेलंगाना यानी कि 30 एक स्टेट बन गया। अब कहीं ऐसा कोई हुई ना हो कि आंध्र प्रदेश के बाद रायलसीमा अलग से डिमांड करने लगे या चोलंगाना बन जाए। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की ये प्रस्ताव जो है, प्रपोजल है, इट इज वर्थ कंसिडरिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर दैन जियोग्राफिक डिसेंट्रलाइजेशन। प्लीज नोट इट डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर दैन geographical decentralization और geographic politico decentralization और politico geographic decentralization। मतलब समझ में आया? politico geographic decentralization का मतलब ये है, क्या है? नई स्टेट बनाना, नए चीफ मिनिस्टर बनाना, ठीक है। अब तेलंगाना में देखो कि नए चीफ मिनिस्टर तो बन गए, उनका 500 करोड़ का बोलते हैं बंगला भी बना दिया, सरकारी बंगला, और इलाज कराने जाते हैं सिडनी, लेकिन लोग वहीं के वहीं रह गए, है ना। ज़्यादा विकास नहीं हुआ, जितना मुख्यमंत्री का विकास हुआ है उतना लोगों का नहीं हुआ, मेरा ये कहना है। तो इसीलिए लोगों का विकास तब होगा जब आप प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, बीडीओ, लोअर ब्यूरोक्रेसी, कटिंग एज लेवल पे, जो जहां पे सरकार नागरिक के संपर्क में आती है, वेयर द गवर्नमेंट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सिटीजनरी, इट इज एट दैट लेवल you need to enhance the level of governance rather than creating these capitals and things, right? तो ये एक अच्छा प्रपोजल है। Now, ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन हेल्थ डेटा ओपन फॉर फीडबैक, इसको बाद में देखेंगे। ड्राफ्ट, अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पे है तो इसको बाद में देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लेना, जस्ट रीडिंग द न्यूज़ पेपर, दैट्स इट। राज्यसभा चेयरपर्सन राइट्स टू पैनल हेड्स ऑन रूल्स। इनको रूल याद कराए जा रहे हैं। बोला जा रहा है लोकसभा के स्पीकर ने ये कहा है, रूल नंबर 270 है, जिसके चलते पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स को पब्लिक डोमेन में वो बातें नहीं लानी चाहिए, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में हुई डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस को सीक्रेट रखना चाहिए, ताकि शशि थरूर जैसे लोग यदि फेसबुक नेग्लेक्ट करे, फेसबुक जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, फेसबुक को कोई भी हेट स्पीच या कुछ ऐसी चीज़ को डिलीट करना ज़रूरी होता है। लेकिन शशि थरूर ने पिछले दिनों ये कहा कि फेसबुक ने बीजेपी के लीडर्स द्वारा रूमर मॉन्जरिंग या हेट स्पीचेस के जो चीज़ें फेसबुक पे करी जा रही हैं उनको फेसबुक डिलीट क्यों नहीं कर रहा, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की चीज़ों को इमीडिएटली डिलीट कर दिया जाता है। जब ये रेवलेशन करी गई तब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो चेयर्स हैं, लोकसभा स्पीकर और नहीं, किडनी खराब होने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि काश अगर मैं तेलंगाना का नागरिक होता, मुझे ये बताया जाता कि भाइयों बहनों आज मैं फास्ट पे बैठ रहा हूँ और जब मेरी ख़राब होगी किडनी तो तुम्हारे ही पैसों से मैं जाऊँगा इलाज कराने सिडनी, तो शायद मैं उस स्टेट के कार्व आउट करने के टाइम पे समर्थन ना देता। मैं ये सोचता कि ये तो जाएगा सिडनी,
है ना। तो मैं क्यों ख़राब करूं अपना सारा काम धाम, मैं अपने काम पे जाता। अल्टीमेटली इट इज़ माई वर्क। तो ये नई जियोग्राफिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रिजर्वेशन, रिलीजन, ये जो 3-4 मुद्दे हैं, इनके चलते जनता को बहकाया जाता है। अल्टीमेटली ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, आपको आपका मुख्यमंत्री मिल गया, ठीक है। नाउ कमिंग हियर, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मैटर्स हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट ही रहने चाहिए। समझ में आया? वॉयलेशन ऑफ दिस वुड टेंट अमाउंट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, यानी कि अगर पैनल के चेयरपर्सन शशि थरूर जैसे लोग इन बातों को पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, या कोई मीडिया पर्सन अगर इनको डिस्क्लोज करता है जिसके हाथ ये बातें लग जाती हैं, अगर मान लो कि किसी होटल में ये मीटिंग हो रही है या किसी जूम कॉल के थ्रू मान लेते हैं कि ये मीटिंग हो रही है, तो जूम कॉल के किसी एम्प्लॉय के हाथ ये रिकॉर्डिंग लगती है तो जिसमें ये चीज़ें रखी गई हैं, तो ऐसे केस में वो अगर इसे डिस्क्लोज करते हैं तो उन्हें आर्टिकल 105 ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा या स्पीकर द्वारा। तो ये ट्रांसपेरेंसी के एरा में कमेटी शैल हैव द पावर टू सेंड फॉर पर्सन्स पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि बीजेपी एमपी स्पीकर को लिख रहे हैं डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ कांग्रेस लीडर क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री पैनल ऑन आईटी के चीफ होने की हैसियत से फेसबुक को समन किया, और ये बातें पब्लिक डोमेन में क्यों आई। यानी कि अगर कोई न्यूज़पेपर भी इन बातों को पब्लिक डोमेन में लेके आता है तो उसके खिलाफ रूल 270 के तहत ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस की कार्रवाई की जा सकती है। दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक बिकॉज इन 2010 एक प्री लेजिस्लेटिव कॉन्सल्टेटिव पॉलिसी लाई गई थी। प्री लेजिस्लेटिव consultation policy, the previous government had brought about a policy wherein it is mandatory to consult the public, to upload the draft policy or legislation or bill on the website of the ministry for public to send its comments। जैसे कि ये ड्राफ्ट डिजिटल हेल्थ पॉलिसी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये तो होता है, लेकिन ये रूल भी है साथ साथ कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की जो बातें हैं, जो डेलिब्रेशंस हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे न्यूक्लियर सेफ्टी बिल वगैरह पे जो बात हो रही है वो पब्लिक डोमेन में ना आए तो अच्छा। दूसरा फायदा ये होता है उन बातों को अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी, इफ दोज डेलिब्रेशंस ऑफ द कमेटी वुड नॉट कम इनटू पब्लिक डोमेन, इट वुड सर्व द पर्पस ऑफ अराइविंग एट अ सॉल्यूशन। अगर ये भी मीडिया का शिकार हो जाएंगी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी मेंबर्स जो हैं पार्टी पोजीशंस के हिसाब से एडमेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि लोकसभा टीवी पे उनको पता है कि वो दिख रहे हैं, इसीलिए वो लोग पेपर स्प्रे और चिली स्प्रे ये सब करते रहते हैं, स्पीकर को परेशान करना दिखने के लिए, राजनीति की मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाइव टीवी पे दिखूंगा, राइट। तो इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की डेलिब्रेशंस को कुछ हद तक सीक्रेट रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बात को अगर सीक्रेट रखा जाएगा तो फिर तो ये हो जाएगा कि ये सारे आपस में ही सांठ गांठ कर लेंगे कि ठीक है तुम मेरा जो, फिर तो शशि थरूर के केस में पता है क्या होगा, मैं किसी की फेवर नहीं करता, कि तुम मेरा जो सुनंदा पुष्कर वाला केस है होटल लीला वाला, उसको तुम दबा देना, मैं तुम्हारी फेसबुक वाली बात जो है, फेसबुक वाली बात जो है, मैं उसको दबा दूंगा। तो जनता को पता कैसे चलेगा? वी डोंट हैव थिंग्स लाइक रेफरेंडम इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इन आर कंट्री, ठीक है। स्वीडन वगैरह में रेफरेंडम होता है। ब्रिटेन ने जब ब्रेग्जिट किया तो पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन, तो सिटीजनरी ऑफ ब्रिटेन को वो मैटर रेफर किया गया। हमारे यहाँ पे पता ही नहीं होता कब कौन सा बिल पास हो जाएगा, राइट। इसीलिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी बातें सामने आनी चाहिए। पार्लियामेंट्री विस्टा जो बन रहा है, पता लगा एक दिन नया पार्लियामेंट बन गया, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगा। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की डेलिब्रेशंस को पब्लिक डोमेन में आने से रोकने की चेतावनी देना, ये अपने आप में एक एंटी डेमोक्रेटिक लगता है। समझ में आया? तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आ जाएगा, बाद में हम उसकी असेसमेंट करते रहेंगे कि ये क्या हुआ, हर तरफ है धुआं धुआं। समझ रहे हो बात को? तो ये सीक्रेसी जो है, इट डज नॉट जेल अप विद द कल्चर ऑफ 21st सेंचुरी। ये सरकार को और स्पीकर्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के इस एरा में ये कहना कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बातों को, डेलिब्रेशंस को कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा जाए,
ये आज के इस कल्चर के साथ रूल 270 या रूल 420 जो भी रूल है वो अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस ये हमारे काम का नहीं है। चाइनीज़ 24 फर्म्स को ब्लॉक किया गया है। स्प्रैटली आइलैंड्स ये किसी और दिन इंटरनेशनल रिलेशंस में पूरा एनालाइज कराऊंगा मैं। अभी के लिए जस्ट अ फैक्चुअल ग्लिम्स। वोंट कॉम्प्रोमाइज ओवर राइट्स एट सी। एर्डोगान में साउथ चाइना सी में जो नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस सी में जो चल रहा है उसके बारे में ये इशू है कि यहाँ पे एक गैस ब्लॉक डिस्कवर हुआ है, राइट। उस गैस ब्लॉक में गैस है तो जो यूरोप को रशिया से इंडिपेंडेंट बना सकती है। यूरोप इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स गैस सप्लाईज। अब टर्की ये कह रहा है क्योंकि नॉर्थ साइप्रस हमारे कब्जे में ही है, कब्जे में ही सही तो भी इस गैस रिजर्व पे हमारा भी हक बनता है। साइप्रस ये कह रहा है कि नहीं ये गैस हमारी है क्योंकि हम ग्रीस के हैं, ठीक है। तो अब इसलिए रेसिप ताय्यिप एर्डोगन ये कह रहे हैं कि नहीं दिस इज आर्स। आई विल एनालाइज दिस टॉपिक इन द कमिंग डेज, डोंट वरी। लेट इट कंक्लूड होता क्या है फिर हम देखेंगे इसको। क्लियर? टर्की ग्रीस स्टैंड ऑफ, तो ये सारा कुछ है टर्की और ये सारा कुछ, और इसके बाद बाकी कुछ नहीं। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स कुछ काम के नहीं थे, सुबह भी मैंने एनालाइज नहीं किए। सो दिस इज देयर, यस। नॉर्थ स्ट्रीम इंडिपेंडेंस, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज डीएनए क्लास गाइस। आज का ये रिजर्वेशन का टॉपिक के साथ साथ आपको आर्टिकल 15 और 16 पढ़ना होगा। क्लियर? डन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। हाउ टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, दिस वुड बी द टॉपिक। क्लियर? So thank you everyone. See you at 5:30 for the class on Indian economy, in which we are going to see we are going to finish off monetary policy today. Thank you guys. Please provide yesterday's PPT. What was the title of yesterday's PPT? What was the title of yesterday's PPT? Rajat, there are very less chances. Okay, schedule 5 PPT, right. We'll provide that. All right. Thank you guys.